कई समाज फरमा रहे हैं करते हैं बीएड कॉलेज और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो। ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಳಿಗೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕಲಿದವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಡುವ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಐತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡೋರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಟೈಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಳಿಗೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಆಗ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಳಿಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೀವನನ ನಮ್ಗೊಂದು ಆದರ್ಶ. ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸನಾ ಮಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಸಾಹೇಬರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರು, ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರ್ವಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ದೊರರಾಜ್ ಮಣಿಕುಂಟ್ಲ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ AM ಇಂಡಸ್ಗೇರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಸನದಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಅಹಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದೀರ್ ಅವರೇ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಅಶ್ರಫ್ ಅಲಿ ಅವರೇ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅವರಾದಂತಹ ಕಲೀದಂ ಎಂ ಮಳಿಗೆ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಯಾವತ್ತೂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ IAS, IPS, IFS ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ 7% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ.
आज जो है 70% में मई बुम्माई साहब मिलकर इनको हानगिल का एमएलए का कैंडिडेट बने थे। उस दिन से भी आज तक अल्लाह ताला इनको नजर बस से बचा दे। बगैर हिरस के जिंदगी करे सो आज जो है ये जो हॉस्टल बनाए 600 लड़कियों के वास्ते, उसमें 50% फ्री रखे। बदकिस्मती से क़यामत के करीब जिसे पैसा है उसे दिल नहीं रहता, जिसे दिल है उसके पास पैसा नहीं रहता। लेकिन खुदा का सबसे बड़ा तोहफा है, मलगी साहब के पास पैसा भी है, दिल भी है। ये दोनों चीजें जो है नसीब वाला को मिलती है। क्योंकि आज इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी चीज सदका। नमाज पढ़े तो अल्लाह खुश होता नहीं, सदका करे तो अल्लाह खुश होता है। सदका, तालीम का सदका, पैसे का सदका, अगर कुछ भी नहीं मोहब्बत से मुसाफा करें वो भी सदक़े में जमा है। शायद सभी करने वाले कौन भी नहीं सब उर्दू समझते हैं। हाँ हाँ, मने दೊಡ್ಡ ಮಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಹೋದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ನಾವೇ ಉಳಿದಿರೋದು. ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, 4 ಜನ ಕೂತಿದ್ರು, ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರು ಅವರೇ ಕೂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ, ನಾವ್ ಈ ಜಮಖಾನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತೀವಿ, ನಿಮ್ ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ देवल्ला दिलावल्ला का सीजन है, पूरे सियासतदान भीख मांगने निकले हैं। बेड़ो जाके आस वाला अपनी अपनी बात क्यों भी खरीद वाला मेरी झोली में पड़े नगर को जो होना वो बोल को जाता, नहीं होना सो बोलता नहीं। अब सबको साचार याद आ रहा, बुजुर्गा याद आ रहे, खदमा याद आ रहे, खदम पोशा याद आ रहे। 70% जेल में उनको कौन भी याद नहीं आ। ये 70 साल हो गए आजाद कलाम साहब का जिक्र करे। एक मौलवी साहब के भाई वो लोग मेरे एडवाइजर थे। वो मौलाना अबू कलाम आजाद के बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, उसमें कोई मुसलमान नहीं था। आजाद के बाद 90/5 में वो कमेटी का अगर मेंबर बना तो आपका खादिम सीएम इब्राहिम मेंबर बना वो कमेटी का अंदर। बड़े बड़े ओहदे दिए, लेकिन कौम के ऊपर भरोसा नहीं था। वो कमेटी का काम क्या, मुल्क के हर राज वो कमेटी के सामने डिस्कस होती। न्यूक्लियर कैसा है, वार कैसा है। कलाम साहब मेरे बाजू आको बिठा कर मुझे इतना तारीफ करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। पंजगार नमाजी, सुन्नत रोजे रहने वाले, रमजान का ये एक रोजा कलाम साहब का छूटता नहीं था, लेकिन बाहर दिखा लेने हो। अल्लाह उनको जो मर्तबा देना था वो मर्तबा दिया। आज लड़कियों को तालीम सबसे जरूरत है। ये बच्ची अगर तालीम याफ्ता बन गई, पूरा घर तालीम याफ्ता बनता है। ये काम 90/5 में मैं गुलबर्गा में शुरू करा, रेसिडेंशियल स्कूल शुरू करे। खैर अब वो मोरारजी देसाई स्कूल करके कन्वर्ट हो गई। आज गुलबर्गा के हर घर में 2-2, 3-3 बच्चे ग्रेजुएट हैं, लड़कियां। उस वक्त भी मैं 90/5 में बोला मेडिकल कॉलेज ले जी, यहाँ बैठे थे कोई चेयरमैन साहब,
मुर्दे काटने का देता कहते बे मेडिकल कॉलेज लोगों क्या करे मैं दो तीसरा के स्कूल देता लोग हम के अंदर शऊर रहना। इंशाल्लाह दोबारा वक्त आ रहा 90 को 5 में एक वक्त आया था 2023 में आता है इंशाल्लाह। वो वक्त जो है मैं करक दिखाता हूँ, मुझे मालूम है क्या करना करने का। मुझे भी 70 साल हो गए, सब तजुर्बा देख चुके हूं मैं, लेकिन लड़कियां का बहुत ख्वाहिश मंजे मेरे भी 8 बेटियां बाजू घर वाले बोलते हुजूर का सलाम आया करके, मैं बोला बार बार मंजेश कहीं को आ रहा है और कभी भी बाप को मोहब्बत करने वाली बेटी घर को जाओ बेटा पूछता क्या लाए बाबा, बेटी पूछती क्या खाए बाबा। आज अगर मजहब ये बचा तो इस कौम की औरतों की वजह से इसकी हुर्मत बची। मंडिया में तुम्हें देखे मुस्कान बच्ची 20 रोड़ियां चाक वाले पड़े थे, उन्हें बुरखा डाल लग गई घर को, एक बार उन्हें पुकारे नारे तकबीर अल्लाह अकबर, पूरे रोड़िया बाजू हट गए, पूरे कैसेटा वायरल हुए। वो बच्ची को हिम्मत देना कर उससे घर को गया, हालांकि हरियाणा की पठाना की बच्ची हो, उनका बाप मंडिया में है। वो बच्ची के सिर पर हाथ रखकर दुआ करे मेरी बेटी तो आज इस कौम की शान को उठा कर रखी। उन्हें बोलती चाचा मैं एक बार अल्लाह का नाम बोली सारी दुनिया में अल्लाह मेरा नाम आज बोलने लगा रहा। ये ईमान की ताकत थी, दुनिया क्या भी नहीं। मैं यही हूँ 1.5 करोड़ की कार में, रूह कब्ज हो गई, मुर्दा मैयत इब्राहिम करके बोलते नहीं, लेट जाने का मुझे अमेरिका का पलंग नवे, मस्जिद में खैरात का पलंग है, दफनाते सो भीख की जगह कब्रिस्तान। कौन भी मालदार आज तक कब्रिस्तान नहीं खरीदा, कौन भी मालदार आज तक जनाजा नहीं खरीदा। जिंदा रहे तक के मरे के बाद घर में भी 3 दिन रोने का, ताकि बच्चे अच्छे रहे, साल में एक बार फातिहा करती, जरा बदल गए मर गए मरदूद, फातिहा ना दरूद पूछने वाला नहीं करने वाला, उसकी हालत अल्लाह कुछ मालूम। अब दफनाने के वास्ते मोहल्ले वाला घर वाला से मोहल्ले वाले को अर्जेंट रहता, जोहर को उठा तो कहना मुर्दे को अभी की नहीं उठे जी, असर का वक्त होगा, हमें बाजार को जाना जल्दी करो। घर वाला से मोहल्ले वाला को अर्जेंट रहता। नसीब वाला वो जो आज अल्लाह का हो जाता, अल्लाह उसका हो जाता। उसकी मिसाल बाजू की मजार, 300 साल पुरानी खबर, बाड़ी निकाले तो भी खुशबू आ रही थी, कफन को जो है मट्टी तक नहीं लगी थी। इससे बड़ी मिसाल क्या होना थी। हमारे पास सब भाई बिजनेस वाले छबे, ये खुदा एक रसूल को मानने वाले लाखों हो गए, हजारों खुदा को मानने वाले एक हो गए। हमारे में इत्तेफाक का बात आकी क्या है कि नहीं मालूम। 1400 साल से करबला के मैदान में कौन तोगड़िया था क्या, मोदी था क्या? नहीं, हमारे जो हुजूर के साथ थे उन्हीं हुजूर के नवासिया को खत्म करे, यही इब्लिस का काम। शैतान हमारे पास से ज्यादा आता तो बाजू चाहता थी, उन्हें ऑलरेडी उसके पार्टी में है, क्या तो कर को हम न छेड़ना, जमाता को दो करना। ये काम के टाइम ऐसे टाइम को मालवी साहब जो आज इतनी बड़ी जगह 600 बच्चा के वास्ते ये जो एक तालीम देने का काम करे, इसका अजर तुमने दुनिया में मिलता नहीं। दुनिया में पैसे जो बाहर जाकर बोलते हराम का कमा कर गया था, बहुत दिया मेरा बेटा, फूट दिया क्या कहते नहीं दो, अल्लाह इसे इतना दिया क्या भी दिया नहीं ना जी कहती, देव तो भी गालिया नहीं तो भी गालिया। सिर्फ तुम एक काम करो, जो भी काम करो मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के वास्ते करो, उन्हें राजी तो सारी दुनिया राजी। उन्हें राजी है कर को तुमने इतनी ताकत है ये उम्र में भी, दूसरे सब लट्टे पकड़ने चले गई है। माशाअल्लाह बेटे भी तुम्हारे हैं, इन्हों बुढ़े दिख रहे, तुम्हें जवान दिख रहे बच्चे, क्या है देखो खुद। ये बम्बई तो इनको सर बम्बई इतना चाहता, सब पुराने का हमारे 70 से 800 में है। ये कुर्मी इसका बाबा जगदीश शेट्टी इसके बाबा का चिच्चा था ओरिजिनल, ये सब अब डुप्लीकेट निकले वाले। वो देखो मेरे साथ कौन भी
प्रहलाद जोशी भी ज्यादा बोलता नहीं, तो जयनाथ जोशी बाजू खड़ को इलेक्शन लड़ास वाला ईमानदार लगा वो, कयामत के आसार है। खैर आज बड़ी खुशी हुई मुझे, ये काम तो मैं कर ले जाऊं इंशाल्लाह। हमारे शाहीन कदीर साहब बड़ा अच्छा काम करे, अल्लाह तुमने सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। कौम का काम तुम्हें, कौम को एक बच्चे को पढ़े, तुम ना बोल तो मैं भी चला रहा हूँ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, 4000 बच्चे पढ़ रहे, डोनेशन नहीं है उसमें। एक 3 साल पहले मैं दुबई गया था, 20 रकात की मस्जिद बनाकर ढूंढ गया, और सब 8-8 रकातांचे धन बन के एक 10 मिनट में खत्म कर डालते। 20 रकात की मस्जिद को गया, सलाम फेरा, बाजू एक छोकरा था, हाथ पकड़ के मेरा चूमने लगा। मैं बोला अरमान देखे तो मुझे जेल में डाल डालेंगे, बाबा मेरा हाथ की चूम रहा तू? नहीं हजरत, मैं यतीम खाने एक बच्चा तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा सो, आज इंजीनियर हूँ मैं, महीना 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं, जो है आज तो नदिया को खुश हुआ। मैं उसे वहां बिठा दोबारा सिस्टम में गया, मेरे मालिक मेरी कोई हकीकत नहीं, मेरी कोई बंदगी नहीं, देख तेरा बंदा मेरे हुजूर का उम्मती, उसे मैं बनी हूँ, उसके सदक़े में मेरी दुआ तो कबूल फरमा, अल्लाह के पास दुआ। ये बहुत बड़ी चीज, तुम्हें एक वक्त का जो खाना खिला रही, बड़ी सवाब का चीज ये इल्म जो सिखा रहे, और वो भी जिसे खाना सुनने नहीं आते, जबान नहीं, वैसे बच्चों को आज जो तुम ले लगा देखे, अच्छे बच्चों को पढ़ाने वाले बहुत है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाले लाख में 1 आदमी मिलता। वाकई इनकी ऐसे लोगों की खिदमत करना। आज केरला के अंदर खलील तंगड़कर को, उन्हें भी डम एंड डफ का मदरसा, आज केरला में जाकर देखो, 21 एपी मुस्लिम वह मदरसा 30,000 बच्चे पढ़ रहे, 30,000 बच्चे पढ़ रहे वहां पर। और खलील तंगड़ का मनपुरम में ऐसे 1000 बच्चे हैं, दीवाने मुक्के, बाता नहीं आते, खाना नहीं सुनने आते। अल्लाह तबारक व तआला बोलता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, जमीन वाले के ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुमके ऊपर रहम करता। ये सोच हमारे पास रहने का, रहे सो बच्चे लड़ने मर जाते, अब भी बाबा दफने में रहते, काय चाव्या, काय थैलिया, कितनी आस्ती है, वो मेरा ये तेरा, ठहरो रे बाबा अभी 40वां वंदे, वो भी फुर्सत नहीं रहती। तो उसके वास्ते तुमने बड़ा अच्छा करी, सिस्टमेटिक जो होना सब लिख को रख ले, गलाटा नहीं क्या भी नहीं। अच्छा ऐसा मैं कभी भी बोलता हूँ, बेटा ऐसा पैदा करो जो तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाए, दीनी बनो, दुनियावी बनो। दुनियाई तालीम, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारी दुनिया को भी अच्छी कर, आखिरत को भी अच्छी कर, दुनिया भी अच्छी होना, आखिरत भी अच्छी होना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको बच्चों से हर चीज से अल्लाह नवाजा, 100 साल तक तुम्हारा उम्र अल्लाह दे दे। 100वें साल को मैं चीफ मिनिस्टर को तुम्हारा जो है इफ्तिताह करके जाता हूँ आप इंशाअल्लाह। बुजुर्गों की दुआ है, मैं कभी कार्य कासिम को तो हुआ सब काम करना, ये भी हमारा खब फोन भी किसके बाप का देने का नहीं। 1,45 करोड़ है, में 7% वाला धनगर बना तो 1.5 लाख करोड़ वाला क्यों नहीं बनना, ये हमारा रुहाब है। इंशाअल्लाह वक्त आता होता, हर कौम को आज मौका मिला, ये कौम को भी जो इंशाअल्लाह मौका मिलता। तुम्हारी दुआ तुम्हें करो, कोशिश मैं करता हूँ, मेरा रब्बुल आलमीन जो है मेरी मदद करता, इस यकीन के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಡತನದಿಂದ ಭಾಳ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನದ ಭಾಳ ಅದ್ರ ಮಸೀದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬೆಳೀತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಇವನ್ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಹಿತ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತಂದ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ನುಕ್ಸಾನ ಆಯಿತು, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ. ಸೊ ಇವೇನು ತ್ರಾಸ ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ದೊಳಗೆ, ನಮಗೆ ಒಳಚಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಡತನದಿಂದ ನಾವೇನು ಬಳತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನದ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನದ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ is a public charitable trust. It does not cater to one, it caters to all the religious communities, all. ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಜುಕೇಶನ್? ನಾವು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗೇನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ 50% ತನಕ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಯತೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನಾಥರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. 50% ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ, ಈವನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಊಟ, ವಸತಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 600 ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 600 ಹುಡುಗರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ ಈಗ ನಮ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 50% ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೋಗ್ಯ ಬಡ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು? ಇದು ಓನ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಲುವಾಗಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಇದೇನದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ಸಲುವಾಗಿ ಏನದ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सना एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 20 साल से जनाब मोहम्मद हुसैन मलकी साहब शुरू किए. अल्हम्दुलिल्लाह हुबली के लिए बड़े देन है इस तरह का इंस्टीट्यूशन कैंपस बना दिए. उसके बाद जो है 2019 में हमारा मुलाकात हुआ और मलकी साहब का ये था कि इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज चेयरमैन इस चैरिटेबल ट्रस्ट का MM मलकी साहब है. मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ. खालिद मलगी, अयूब सौनूर और तारिक मुजाहिद, बाकी सारे लोग हमारे साथ मिले हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्टी से यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. शुरुआत हम लोग जैसे टेक ओवर किए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शाहीन बिदर इंस्टीट्यूशन, उनके साथ में बातचीत हुआ, उनको भी साथ में लिए. वो भी हमारे साथ में मिला हुआ ट्रस्टी है. तो सना शाहीन इसको जो है सिर्फ PUC जो साइंस कॉलेज है उसको जो है सना शाहीन के नाम से शुरू किए. बाकी सारे जितने भी है BEd है, BSc नर्सिंग है, जनरल नर्सिंग है और पैरामेडिकल कोर्सेज है, वो सना का नाम से ही है. लेकिन PU साइंस इसीलिए हम लोग चॉइस किए कि आगे बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करने के लिए, मेडिकल फील्ड में हो या इंजीनियरिंग फील्ड में हो और बाकी सब मतलब जो कोई भी फील्ड में अगर जाने के लिए साइंस ज़रूरी है, इसीलिए PUC साइंस हम लोग शुरू किया. अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ में हम लोगों ने इससे 2 साल पहले हमारे दो बैचेस शुरू हो गए. 15 से 20 पहले बैचेस के जो MBBS सीट मिले. अभी लास्ट बैच में भी 20 के ऊपर मतलब फैकल्टी का कैसे सर जॉब ऑफर कैसे कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर साइंस का बड़ा कॉम्पिटिटिव है. मेनली जो है फैकल्टीज़ के लिए काफ़ी मतलब जो है कंपटीशन है, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करवाने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में, आकाश हो, बायजूस हो, तो उस पर मतलब सर्वाइव होना शाहीन की एक मतलब खासियत है कि शाहीन का सिलेबस को बीट करने के लिए मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ, चाहे आकाश हो, बायजूस हो, कोई भी हो, शाहीन का सिलेबस बीट नहीं कर सकता है. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को करके दिखाया. और शाहीन बिदर जो है पूरी कर्नाटक के अंदर नीट स्टूडेंट जो पास होते हैं उसमें 10 से 12% पूरा कर्नाटक के अंदर शाहीन के स्टूडेंट्स हैं. अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है सना शाहीन भी जुड़े. अब शाहीन इंस्टीट्यूशन के ऑलमोस्ट ऑल 13 स्टेट्स में इनकी अवेलेबिलिटी है और 70 इंस्टीट्यूशन है उनके. यहाँ पे आपके जो PUC साइंस में जो ट्रेन होके बच्चे जा रहे हैं, मेडिकल उनके जो कॉलेजेस में मेडिकल कुछ रिजर्वेशन रखा है क्या होगा? ठीक है, शाहीन के लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है. शाहीन का खुद का मेडिकल कॉलेज नहीं है, बल्कि शाहीन बिदर जो है तकरीबन जो है 5 मेडिकल कॉलेज चलाने के लायक बच्चों को हर साल जो है गवर्नमेंट मेडिकल सीट दिला देते हैं. इसी ओनली PUC साइंस में ही मतलब कि जो है ये
माहिर जो है ना हम लोग फोकस है, and it's a great success. Even if you start one medical college, you can get maximum 80 to 100 seats. When we are coming out with 500 students, 500 students are coming out with NEET recognition, they are getting seats. तो 5 मेडिकल कॉलेज चलाने की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन कॉलेज जो आपने एक्रेडिटेशन यहाँ पे आपको लिया है, वो कहीं पे स्टूडेंट्स को प्लेस करने के लिए हेल्प करते हैं यहाँ? बिल्कुल देखिए मतलब अभी पीयूसी साइंस के बाद में प्लेसमेंट की बात नहीं। नहीं प्लेसमेंट नहीं, उनको हेल्प कुछ करके उनको मेडिकल का नहीं देखिए, मेडिकल का जो क्राइटेरिया है ना, मेडिकल नीट एग्जाम पे मेडिकल सीट्स मिलते हैं। नो रिकमेंडेशन नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। नीट में जो है ना, जो मार्क्स रहते हैं कैटेगरी पर गवर्नमेंट उसके हिसाब से मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि डोनेशन सीट्स आते हैं जो उसके लिए कुछ हेल्प करते हैं। नहीं वी आर फोकसिंग, हमारे पूरा फोकस जो है बच्चों को जो है नीट में तैयारी करवाना, और वो बच्चे जो है 500, 550, 600 प्लस मार्क्स अगर लिए तो गवर्नमेंट सीट्स मिल जाते हैं, और बाकी बच्चे 450 के आसपास मिलते हैं तो हो सकता है कि डोनेशन भी थोड़ा बहुत देख के सीट देना पड़ता है। डोनेशन देना मतलब कि जो है स्टूडेंट की और कैपेसिटी और हमें चाहता है कि हम चाहते हैं कि बच्चे जो है 550 क्रॉस करें, 600 क्रॉस करें मार्क्स, ताकि मेरिट से जो है फ्री गवर्नमेंट सीट लेवे। तो उसी कोशिश शाहीन और सारा शाहीन का है। काफ़ी कॉलेजेस अभी कंपटीशन में हैं, तो आप स्टूडेंट को अप्रोच कैसे करते हो कि क्या फैसिलिटी? देखिए अनलेस अनटिल मतलब आप सर्विस मतलब सही एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड गुड सर्विस, ये इससे मतलब कि दूसरा कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है। जब टेक टाइम टू प्रूव। ओके, सी क्या है, एक तो how you are approaching to come see there is no, we don't use marketing tactics. There is no marketing tactics. We honestly don't believe in marketing tactics. It is a product which shows your capacity, right? So our products are being showcased since 2 years. So हमारा ये एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि एवरी बैच में 100 में एटलीस्ट 10% will get medical seats. Why I'm asking so so this because confidence is there. से बंद था तो लोगों के ज़हन में है कि so this is mouth to mouth. Yeah, this all publicity जो है, this goes mouth to mouth. शाहीन बिदर जो कामयाबी हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने बताया कि 400, 450, 500 सीट जो फ्री गवर्नमेंट मेडिकल सीट दे रहे हैं, उसी तरीके से जो है हुबली और नॉर्थ कर्नाटक के लिए एक सेंटर बना हुआ है। दिस इज सेकंड शाहीन, मतलब फर्स्ट अगर बिदर अगर शाहीन का हो तो सेकंड सारा शाहीन कैंपस। एंड वी आर होपिंग दैट मतलब वी वांट अराउंड 2000 स्टूडेंट्स मिनिमम पीयूसी साइंस के लिए हर साल यहाँ पर ट्रेन कर सके, और वही उसी तरह 400-500 बच्चों को हम लोग हर साल जो है मेडिकल सीट दिलावे। इसी के अप्रोच है, इसी के टारगेट रख के हम लोग आगे जा रहे हैं। ये जो हॉस्टल बना है खास करके जो है मलगी साहब का ख्वाब था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 600 बच्चे खास करके जो है, मैं समझता हूँ कि अगर 600 कैपेसिटी अगर हॉस्टल है, उसमें 300-400 बच्चे जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीट के ख्वाहिश रखने वाले बच्चे यहाँ पर आके पढ़ने वाले, चाहे वो बीजापुर से हो, चाहे हावेरी से हो, चाहे दावनगरे से हो, जितने भी मतलब कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि गरीब बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, गौंडी, बारबेंडर, टेलर, इनकी बच्चे जो है टैलेंटेड रहते हैं, बहुत ही मतलब जो हुनर जोश रहता है, लेकिन जो कि बड़े बड़े मतलब कि जो है जितने भी आपको हमारे कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस के अंदर 1.5 लाख 2 लाख रुपये तक की सीट नहीं ले सकते हो, तो उनके लिए हॉस्टल 1.5-2 लाख रुपया सिर्फ पढ़ने के लिए, और हॉस्टल के लिए 1.5 लाख रुपये अलग, इतना पैसा देके कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा गरीब लोगों के लिए खास करके हमने मतलब कि ये मलगी साहब ने ये हॉस्टल शुरू किया है, जहाँ पर अगर वाकई में मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो, गरीब स्टूडेंट्स हो, उनके लिए वेलकम है। आप ये हॉस्टल में रहिए, अच्छे से अच्छा इंटरनेशनल लेवल का हम लोगों ने रहने का इंतज़ाम किया, और खाने भी माशाल्लाह मतलब कि बहुत अच्छा खाना दे के आपको पढ़ाने के लिए मतलब कि हम लोग पूरे अच्छे से अच्छे फैकल्टीज लेक्चरर्स रखे। और मैं ख़ास ये बताऊं कि आजकल यूजीसी स्केल के अंदर हम लोग जो है पे कर रहे हैं लेक्चरर्स को, जो है यूपीएससी के लेक्चरर्स को यूजीसी स्केल में हम लोग पे करके हम लोग रखे कि बेहतर से बेहतर जो है ट्यूशन देवे, बेहतर से बेहतर एजुकेशन देवे, ताकि मतलब जो है बच्चे नीट के लिए भी क्वालिफाई हो, सीईटी के लिए क्वालिफाई हो, और जेडब्ल्यू के लिए क्वालिफाई हो। सर फाइनली जॉब कैंपस इंटरव्यूज आपने कोई कंडक्ट किया है? एग्जैक्टली ऐसा कोई अचीवमेंट? एग्जैक्टली हमारा पैरामेडिकल कोर्सेज और बीएससी नर्सिंग लुलु के लिए भी लुलु वाले आके हम पर कैंपस इंटरव्यू लिए, एमएम जोशी हॉस्पिटल वाले कैंपस इंटरव्यू लेके जो है बहुत सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को, डीओटी स्टूडेंट्स को लिए,
बीएससी नर्सिंग अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुचरा हॉस्पिटल वाले हमारा बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स टेक ओवर कर रहे हैं। इस तरह हम लोग मतलब कि जो है बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह अभी महाराष्ट्र से बहुत सारे कंपनी के साथ में हमारा प्लेसमेंट के बारे में हमें भी मोहम्मद हुसैन मलगी चैरिटेबल फाउंडेशन जो बना है उसके पीछे भी एक कहानी है, एक स्टोरी है छोटी, मैं आपको बताऊंगा छोटे से भी, जो स्मॉल टाइम आई जस्ट ब्रीफ यू। सी अब्बा जो है उनकी हिस्ट्री जो है ही हैज गॉन थ्रू अ टफ टाइम। ओके, सो हमारे जो दादा थे ही वाज उर्दू स्कूल टीचर। सो आउट ऑफ उनके 7 बच्चे, 5 sons and 2 daughters. अब्बा इज द एल्डेस्ट सन, इनके ऊपर 2 बहन। अच्छा, तो एंड दे आर वेरी 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 पुअर। फ्रॉम उर्दू स्कूल टीचर बोले तो यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 15-20 रुपए कुछ सैलरी था दादा का उस टाइम पे। सो पढ़ाई तो भाई ज़्यादा मुश्किल था सबको पढ़ाना वगैरह, लेकिन अब्बा को ख्वाहिश थी, ये उनकी स्टोरी बता रहा हूँ आपको छोटे में। तो कैसा भी करके 10th लैमिंगटन से कर लिए, पास हो गए। उसके बाद में PUC पढ़ना था, सो कैसा भी करके धारवाड़ गए, किसी स्टाफ के घर में रहे, उधर PUC पढ़ लिए। PUC के बाद में अच्छा, हालांकि PUC भी पास्ड इन फ्लाइंग कलर्स, वहाँ उस टाइम पे मेरिट सीट वगैरह तो नहीं थे। सो तभी क्या हो गया, तो PUC पास होने के बाद में ही गॉट क्या बोलते, रेलवे में नौकरी मिल गई। सब लोग बोलने लग गए कि भाई रेलवे नौकरी है, क्या जाता हो, क्या पढ़ता एंड ऑल दैट करके। बट स्टिल उनको कुछ ख्वाहिश थी, नहीं, आई वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट, आई वांट टू, मैं इंजीनियर बनना, मैं पढ़ना, मैं आगे कुछ और ये करना करके जोश था अब्बा को। सो उतने मुश्किल में भी कैसा भी करके बहुत कोशिश करे ये इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लेने, हालांकि लेकिन बहुत मुश्किल हुआ, कुछ कलेक्ट नहीं कर पाए। जैसा उन्होंने बताया कि 250 रुपए फीस था, नहीं कलेक्ट कर पाए। तो वो कैसा ऐसा कलेक्ट करते करते कुछ 100 रुपए जमा हो गया। सो वो चलो 100 रुपए तो जमा हो गया करके वो डिप्लोमा जम गए। पढ़ते पढ़ते उनको पता चला कि बॉम्बे में दादा फजल बॉय और दादा बॉय चैरिटीज करके हैं, और HIMS बोट वाला चैरिटीज, पारसी मुस्लिम से HIMS बोटा वाला चैरिटीज। तो मैं वो उनको अप्लाई किए। सो वहां से उनको चैरिटी और स्टाइफंड मिला। सो वो पैसे आने के बाद में ही लेफ्ट डिप्लोमा, नेक्स्ट ईयर BUB 250 जमा करके इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन हो गए। BBB 4 साल स्कॉलरशिप आते गए और स्टाइफंड आते गया। ये सब उनकी वो चैरिटीज के वजह से हुआ। ओके, मैं क्यों ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि 50 साल के बाद में भी he is 86 now. It is more than he is finished his engineering का, तो almost it is more than 60 years now. He still remember those charities names. याद रखिए, दादा भाई नाम के साथ पूरे चैरिटीज बोलती हो ना, HIMS बोटा वाला, वो कहाँ ही गूगल करे ढूंढना हमें अब। एंड और क्या वो दादा फजल बॉय एंड दादा बॉय चैरिटीज। सी, एक आदमी को चैरिटीज से जो बेटा उसके दिल और दिमाग में जो जरूरत टाइम पे जो हेल्प मिला और उन्होंने जो अपना ड्रीम फिनिश करे, ही कुड नॉट फॉरगेट दैट नेम। यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट ही फील्स कि उनका भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो के फर्स्ट कॉलेज शुरू करे, वी हैव डन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, पैरामेडिकल के, B.Ed के, BSc, GNM, PUC, स्कूल वगैरह। सो चल रही है, अच्छा चल रही है। उधर चैरिटीज भी करती, डोनेशंस भी करती, फीस भी लेती, कितना हो सकता है मदद करने वाले को मदद भी कर रही है। क्या इस नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, कितना हो सकता है कोऑपरेट कर रही पेरेंट्स के साथ, इंस्टॉलमेंट दो, महीना दो, 6-3 महीने को एक बार। सी व्हाट ऑल पॉसिबल है। कम्युनिटी के एक एंगल से आप मुझे पूछे तो कम्युनिटी को भी बनाना चाह रही, कई को कम्युनिटी को बनाना चाह रही, वो भी बता दिए सब लोग। क्योंकि अगर एजुकेशन इज द बेसिक, कम्युनिटी एजुकेशन अगर हुई तो उनका खुद का ये ग्रो होता है, कम्युनिटी ग्रो होता है। जी, मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, इंडस्ट्री में भी आप हो सर। हाँ, सो ये इसके बाद में उनका इंटेंशन था कॉलेज हो गया, अभी हॉस्टल में रहे, बच्चे रहे, उसमें 50% चैरिटी, 50% फीस कलेक्ट करो। तो कई को 50% क्लिक मेंटेन करना नहीं, चलाना नहीं। 400-500 बच्चा का हॉस्टल चलाना, आप देखें कितना स्टैंडर्ड में बना है। फिर 500-600 स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, खाना पीना रहेगा। सो 50% से बच्चे कलेक्ट करेंगे फाइस से, वही जो नॉन पेइंग पीपल हैं उनको पास ऑन करेंगे बेनिफिट्स। नॉन पेइंग स्टूडेंट्स गरीब हैं, अपाहिज हैं, यतीम हैं, दे डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, रहेंगे शायद 50 साल के बाद में हम ना याद करेंगे, मलगी फाउंडेशन को याद करेंगे शायद, इंशाल्लाह। करेक्ट।
सो दैट इज हिज इंटेंशन कि कितना हो सकता है। और मेजर थिंग, और एक मैं एज अ सन मैं बोल देता हूँ आपको, उनका ये है कि उनकी जो भी कमाई है उसमें 1/3 हिस्सा उन्होंने चैरिटी को देने के लिए डिसीजन लिया है। वो हम सब उनके साथ में 1/3 उसका जो भी है। अब ये डिक्लेरेशन नहीं है कि कितना अमाउंट है करके, वो अल्लाह बेहतर जानता है। एक है। एंड सेकेंड, अब आपको दिखाए हम वी आर एसोसिएटेड विद विवेकानंदा डम्ब एंड डिसेबल एसोसिएशन। ओके, सो वहां पर 40 बच्चे हैं साहब, डफ एंड डम्ब बच्चे हैं विच आर पास्ड फ्रॉम 10th, who have come आफ्टर 10th। अब ले रहे हैं बच्चों को, हम छोटे बच्चे नहीं ले रहे, 10th के बाद ही ले रहे हैं। वो गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप आके छोड़ देते हैं, इटको रिसरी लेनो, इटको तिरंतला नहीं हो करके। सो उसे क्या पढ़ना है, उसे बाबा तू ITI पढ़ता पढ़ो, तू PUC पढ़ता पढ़ो। पढ़ने के बाद साहब, बिलीव इट और नॉट, some of them have done IT and all that, they have all been appointed in Amazon, Flipkart, I have with proof our students। and एक साल हो गया उनको, almost more than a year now, 40 children are with us and almost एक 20 चले गए हैं बाहर। उनका रहना और खाना, believe it or not, चैरिटी ट्रस्टीज दे रहे हैं अपने पॉकेट से, completely free। और हर संडे अशरफ भाई पास स्पेशली उनको बिरयानी जाती है, नॉन वेज बिरयानी जो भी पकी रहती है एवरी संडे वो बच्चों को, ताकि उनको भी मैच और लॉट ऑफ थिंग्स भी उनको हम ऐसे एक जस्ट चैरिटी के एंगल से नहीं देख रहे होंगे। जैसे आशफ सर का आपने नाम लिया है, तो इनको क्या इस इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों को मदद करने के लिए पॉलिटिक्स में भी आना है, या कोई अच्छे लीडर बन के आ सकते हैं? सर ये 100% इट इज लेफ्ट टू द पब्लिक टू डिसाइड। ओके, बट इफ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन, ही इज अ जम ऑफ अ पर्सन, ही इज ऑलराउंडर। चैरिटी में भी नंबर 1 है, बिजनेस में भी नंबर 1 है, पॉलिटिक्स में भी इंशाल्लाह नंबर 1 है। It is left to the public to decide what they want to use him. It is left to the public to such person to utilize such person in the community. Let me tell you one thing in the community to utilize him. It is left to the public how we utilize him. This is all I can tell. The first community, the first step, पहला community और पहला step आपका अंजुमन का इलेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा उसके बारे में बताओ। If you get the opportunity आप बनाओ या point of view क्या रहेगा कि लोगों के लिए? मैं तो समझता हूँ कि देखो, खिदमत करना एक मतलब इबादत है। Yes, correct. Exactly. खिदमत एक इबादत है। सही है, very good. वो खिदमत करने के लिए कोई पोस्ट, कोई कुर्सी नहीं चाहिए। Exactly right. माशाल्लाह। आपने मतलब जो है CA NAC के वक्त पर जैसे हमारे आइडेंटिटी खोने की बात हो गया, तो दिल नहीं मतलब हमें नहीं रहा मतलब कि कुर्सी पे बैठ के या घर में बैठे, हम सड़क पर उतरे। और उसके बाद में कोरोना का टाइम पे आपको पता है कि कितनी भयंकर मतलब जब मुसीबत में मतलब कि हर कोई जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। आई रिमेम्बर कि किम्स के अंदर मतलब कि जो है 1000 बेड जब कंप्लीट हो गया, लॉक हो गया, तभी भी मतलब कि जो है पेशेंट्स आते थे, उनको मतलब के कॉरिडोर में रख के हमने इलाज करवाया। दिस आर ऑल थिंग्स मतलब जो है खिदमत कभी भी किसी भी ग्राउंड से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन होना है, जरूरी नहीं कि अंजुमन होना, ये कोई जरूरी नहीं है। बिना लीडरशिप के आप इतना सब कर रहे हैं, तो लीडरशिप मिलेगी तो आप काफी कुछ कर सकते हैं। नहीं, आई ऑलवेज थिंक दैट वी कैन बी अ बेटर किंग मेकर। देखो, किंग मेकर का रोल किंग से बड़ा है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि किंग मेकर का रोल प्ले करें। नहीं, सही है। अभी जो इंस्टीट्यूशन का मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो लिंगायत इंस्टीट्यूशन है, वो कितनी तौर पर बढ़ रहे हैं आप देख सकते हो। क्यों बढ़ रहे हैं? दे हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड सपोर्ट, और इंटरनली किंग मेकर भी है, किंग भी है वहाँ पे। इसीलिए ये तो एग्जैक्टली मतलब हमें देखो पॉलिटिकल जो है वी टेक मतलब देखे, चाहे मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारा रिलेशन हम लोग बिल्डअप करना ज़रूरी है। वरना मतलब कि हमारे जैसे बिजनेसमैन या एजुकेशनलिस्ट को जो है लोगों तक काम करवाने के लिए, काम पहुंचाने के लिए सिंगल एक कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर मैं जम गया तो हो सकता है कि मुझे मतलब अलग अलग जो है अलग अलग फेस दिखाना पड़ेगा मुझे। तो बेटर मतलब कि I can approach to all political parties and get benefit of it. या पॉलिटिकल हो, जो दिखता है वो बिकता है। आप दिखा कैसे रहे हो? आखिरी सवाल मुझे खत्म करूंगा सर, जैसे आप यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हो, कोई दूसरे शहर में भी इस तरह का कुछ आपका फ्यूचर प्लान है?
केरला में आई एम ऑलरेडी केरला में मैं एक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज चला रहे हैं, जिसमें बी फार्म है, एम फार्म है और BSLP ऑडियो स्पीच थेरेपी का कोर्सेस है। बेहतरीन मतलब कॉलेज है, तकरीबन 600 से 700 बच्चे जो वहाँ पर पढ़ाई हो रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम फार्मेसी कॉलेज जो जब्बार खान हनली साहब ने जो कायम किया, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो विवेकानंद सोसाइटी जहाँ पर डेफ एंड डिसेबल के लिए, उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग एक एसोसिएट होते हुए जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद इट। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। टीम अच्छी हो गई, होटल इंडस्ट्री है, लेकिन आज मुझे सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है कि खुद कुछ करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो एजुकेशनल फील्ड से है।